Here you can see a program of file handling in the language Python. I am Ashish Tripathi from the Mount Ita GE School, and today I am going to, in my previous lecture, I told you that what is Python, what is the use of the functions, what are the use of the different topics, what is the use of the dictionary, what is the use of the different things in the Python. Today I am going to tell you the use or how to store the data permanently using the language Python. Means how we can store the data permanently in the hard disk using the language Python. Here are variable. Here I have written a program in language Python. The version is 3.6. Here count is a variable where I am asking how many values are there. If I have given 3 values, that means it will store the data for the 3 values. File out is the object to store the data in the file, marks.dat, and w is the keyword that denote that you are storing the data, that you are writing the data in the file. After that I have taken 3 variable, roll number, name and marks, and using a variable rec I have consolidated them, and I have stored the keyword using write keyword. I have stored the value in the file out, in the file marks.dat. Now I am closing the file out using the keyword file out.close. Again I am reopening the file out equal to open marks.dat a for I in range 2 print enter details for the next 2 student के लिए मैंने डिटेल्स और लिए. जब ये डेटा स्टोर हो गया तो फाइल out.close के जरिए मैंने डेटा को क्लोज कर दिया. Now at the last I have reopening the file using keyword file.inp. It is the object to read the data from the file marks.dat. While str equal to file.enp.readline. एक बार ये क्या करेगा, अब str कीवर्ड जो भी डेटा हमने फाइल आउट डॉट से marks.dat में स्टोर किया था उसको वापस लेगा str में और एक करके प्रिंट करेगा. यहाँ एक बात, we have to learn one thing that each and every time we are closing the file, that means अगर हम w मोड में खोलते हैं या append मोड में खोलते हैं, क्लोज मोड या फिर रीड मोड में खोलते हैं, तीनों मोड्स में आपको फाइल खोलने के साथ साथ बंद भी करनी पड़ती है. दैट मीन्स आपको यू हैव टू क्लोज द फाइल एंड यू हैव टू ओपन द फाइल. एज यू आर ओपनिंग द फाइल, एज यू हैव टू क्लोज द फाइल. नाउ आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम यूजिंग I am clicking on run module. Okay, then you can see it is asking a value how many students. So I have given the value 3. It will ask for the first roll number. I have given the 1. Then anything I have written HHH. Then marks 23. Second value roll number 2. Then the name. Then the marks. Again third value roll number 3. Again any name and the marks. Now अब ये 3 वैल्यू स्टोर हो जाने के बाद एंटर डिटेल फॉर स्टूडेंट 1 बिलो का मतलब है वी आर अपेंडिंग द डेटा. मींस प्रीवियसली वी हैव स्टोर्ड द 3 वैल्यूज. नाउ हम फिर से नई 2 वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं दोबारा फाइल को ओपन करने के बाद. तो आई हैव गिवन द रोल नंबर 9, देन आई हैव दिस एंड मार्क्स दिस वन. अगेन द सेकंड स्टूडेंट नेम, एनीथिंग आई हैव गिवन. Now all the 5 records are there, you can see. Thank you. I am Ashish Tripathi from Mount Ita GE School. This video is especially the student of class 8. Today we will talk about the internet. We will talk the different topics of the internet. Means इंटरनेट पर काम करते समय क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, दैट इज़ दैट इंटरनेट. इनमें से मेन है दैट इज़ द ब्लॉगिंग. ब्लॉगिंग मीन्स द ब्लॉग्स आर रिटन बाय द फेवरेट. एज हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं नंबर ऑफ द आर्टिकल्स आर कमिंग. सिमिलरली ऑन द इंटरनेट नंबर ऑफ द आर्टिकल्स आर कमिंग ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज, स्टूडेंट्स, लीडर्स and more. You can also write your own blog. Blogging means they are the website that allow user to enter post on any topic that is related to any issue
these posts can be read and commented by the other user. Both are used by people to publish their creative content. Means अपने दिमाग की जो creativity है उसे आप कहीं ना कहीं इंटरनेट पर यूज़ कर सकते हैं. That is the blogging. इसके बाद आता है रेफरेंस वेबसाइट. रेफरेंस वेबसाइट आर द ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया. वो एनसाइक्लोपीडिया है इन विच नंबर ऑफ द टॉपिक्स है. जैसे कि आपको किसी भी टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आप टॉपिक्स पाइथन लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर पे देखना चाहते हैं तो लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर्स के लिए आप रेफरेंस वेबसाइट सर्च कर लिए, लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, विकीपीडिया पे चला जाइए, about.com पे चले जाइए और वहाँ से यू विल गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर डिफरेंट टॉपिक्स. ऑल द टॉपिक्स दैट आर रिलेटेड टू लैंग्वेजेस ऑफ द कंप्यूटर्स दैट विल अवेलेबल. हिस्ट्री टॉपिक्स, मैथ्स टॉपिक्स, फिजिक्स टॉपिक, केमिस्ट्री टॉपिक एंड notes of any topic that will be available for the computers. Reference website will give the reference of the particular topic. Now वीडियो शेयरिंग एंड फोटो शेयरिंग मीन्स आपने बहुत बढ़िया फोटोज क्लिक किए हुए हैं और उसका आप एक एल्बम बनाना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं. दैट इज द वीडियो शेयरिंग एंड फोटो शेयरिंग. यू कैन मेक द वीडियोज, यू कैन मेक द फोटोज एंड यू कैन अपलोड द वीडियोज एंड फोटोज यूजिंग यूट्यूब. यू आई थिंक मुझसे ज़्यादा फैमिलियर हैं आप यूट्यूब से, पिकासा से, flickr.com से. दे आर द वेबसाइट दैट आर यूज टू शेयर योर वीडियोज एंड फोटो टू गेट द आउटपुट. नाउ आप YouTube आप सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेयर यू कैन सी द वीडियोज दैट आर रिलेटेड टू योर टॉपिक्स और दैट आर रिलेटेड टू समथिंग. अब आपने किसी भी टॉपिक की कहीं आप घूमने गए, आप घूमते समय आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, पिक्चर्स बनाई, आपने यूट्यूब पर दूसरे पर्सन्स के लिए लोड कर दी. वो एक टॉपिक हो गया जिससे कि लोग जब भी सर घूमने जाएंगे आपकी साइट्स का ध्यान रखेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज ई कॉमर्स. ई कॉमर्स मीन्स, कॉमर्स का मतलब ही होता है बिजनेस. ई कॉमर्स मीन्स द ई बिजनेस. ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड यू वांट टू परचेज समथिंग. समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू परचेज द थिंग्स डायरेक्टली. हमें ज़रूरत होती है, हमें लेनी भी होती है, बुक्स भी होती है, हमारे ऑर्नामेंट्स भी होते हैं और हमारी क्लोथ्स भी होते हैं जो कि इंडिया झांसी में अवेलेबल नहीं है. दैट मीन्स यू वांट टू परचेज देम. सो इंटरनेट पर आप देख करके आप उसका ऑर्डर दे सकते हैं. कैश ऑन डिलीवरी हो जाता है, ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है और वो पोर्टल्स के जरिए द थिंग्स आर अवेलेबल फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल Amazon.com, Flipkart. These are the websites that are available on the internet for the searching of the things, and you using that you can buy or sell anything. Forums means the sites that are available that have the different topics and the user can, जिसके अंदर आप अपने क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं. क्वेश्चन एक सेशन हो जाता है. इसके अलावा आप अपनी आप पर्टिकुलर टॉपिक को पोस्ट करके और आप एज अ जज बन के दूसरे से क्वेश्चंस ले सकते हैं. एक्सपर्ट्स आपके साथ हो जाते हैं एंड दे आर क्लैरिफाइंग योर डाउट्स. आफ्टर दैट आप और भी बहुत कुछ 5-6 लोगों का फोरम्स इकट्ठा ग्रुप बना सकते हैं, डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं और आफ्टर दैट द थिंग्स आर अवेलेबल. CNET, Quora, TechSpot, these are the website that are available for the forums. forums में एक से ज़्यादा लोग हमेशा हो जाते हैं जिससे कि दूसरे लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है. जरूरी नहीं कि वो फिजिकली अवेलेबल हो, डायरेक्टली वो इंटरनेट से भी कनेक्टेड होते हैं. नेक्स्ट इज नेटवर्किंग विथ फ्रेंड्स. मीन्स इंटरनेट पे दोस्त बनाना. इसके लिए आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है Facebook.com, Levio.com, Twitter.com. इसके अलावा Instagram. These all are the website that were networking website that are used to join the friends. और Facebook से जो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी है फैमिली ने, आप उस पर वीडियोज़, आप उस पर पिक्चर्स, लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करना, अपनी वीडियोज़ बना के लॉन्च करना. और इसके अलावा अब अपने से कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छी नॉलेज भी आप वहाँ से गेट सकते हो. तो नेटवर्किंग विद फ्रेंड्स मीन्स यू आर घर बैठे बैठे यू आर मेकिंग योर फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया और आउट ऑफ इंडिया. और जो भी आप सोच सकते हैं अच्छा दैट यू आर लॉन्चिंग ऑन द फेसबुक, वीडियोज़ भी शेयर कर सकते हैं. सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू मेक योर फ्रेंड्स एंड लिव लाइफ. जैसे कि आजकल क्वारंटाइन में हम लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं नहीं जा सकते. सो द फेसबुक और द नेटवर्किंग साइट्स आर द बेस्ट आइडिया टू join the friends. Thank you.